हेलो फ्रेंड्स, ग्रीटिंग ऑफ द डे। मैं हूं प्रोफेसर चेतन बिरला एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ द स्टूडेंट्स इन स्टैटिस्टिक्स। एनी गेसेस विच चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे? यस, कोई भी गेसेस इन स्टैटिस्टिक्स? आई होप सिंबल्स देख के कुछ पता चल रहा होगा आप लोगों को। यस, आपका कुछ कुछ गेसिंग सही है। चलिए, I help you out in statistics. We are going to start with the chapter number 19. Chapter number 19 है आपका index numbers, right? So, in index number, the first index number was constructed by an Italian, Mr. Carli, in the year 1764 में उन्होंने इस चैप्टर को कंस्ट्रक्ट किया था। मिस्टर कार्ली के साथ हेल्प करने के लिए और दो हमारे मैथमेटिशियंस थे एंड स्टैटिस्टिशियंस थे। फर्स्ट थे जी सिम्पसन एंड सेकंड वाज एफ कल्फका। इन्होंने इन चैप्टर्स को फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्ट किया था। नाउ ओवर हियर, बिफोर आई स्टार्ट विद दिस चैप्टर, हम लोग ये बोलते हैं कि हमारा जो भी प्राइस ऑफ एन आइटम होता है, हमारी जो नेशनल इनकम है, सप्लाई है, प्रोडक्शन है, एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्वेस्टमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कॉस्ट ऑफ लिविंग, पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सब वेरी करता है कंटिन्यूअसली विथ टाइम के साथ। Now generally the proportion and direction of this variations also keeps changing होता है इनके साथ। Now it is important to study the variation in the prices and quantity का हम study करें of an item with respect to change of time, कि change of time के साथ साथ ये कैसे changes होते हैं। So the planning for future can be suitably done from the knowledge of this changes से हम कर सकते हैं। Yes. So the changes taking place for the future can be suitably done from the knowledge of this changes से हम करेंगे। The changes taking place in the values of variable at two different time periods can be measured हम कर सकते हैं by the following methods. Yes, वो following methods हैं method of absolute measure and method of relative measure ratios. So for that, I say that as the time changes, we can measure the changes in the variables में हम measure भी कर सकते हैं। And for this, I take an example. Suppose the data regarding the average price per kilogram of two items, wheat and rice, for a month in the year 2015 and 16 is given to you. That is 24, wheat का price है 24, इन द 2015 में wheat का प्राइस है 2016 में 30 रुपीज, राइस का प्राइस 2015 में है 40 एंड 2016 में है 46। Now let us understand the comparisons of variation in prices of wheat and rice using the two methods. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द मेथड ऑफ एब्सोल्यूट मेजर, दैट इज डिफरेंस, जिसे आप बोल सकते हैं दूसरा नाम इंक्रीमेंट कितना हुआ। द प्राइस ऑफ व्हीट इन द ईयर 2015 was rupees 24, which increased to rupees 30 in the year 2016 में। Now the price per kilogram in the year 2016 is increased by rupees 6 से हुआ है, क्योंकि 24 एंड 30, तो दैट मींस 30 माइनस 24 करूंगा तो इंक्रीमेंट इंक्रीज हुआ है बाय 6 से with respect to the 2015। Similarly, the price of rice has also increased by rupees 6, so this is obtained by the absolute difference से आता है ये। Thus, it can be said that the same rise in price in both the items, क्योंकि दोनों items में 6 rupees का ही increment है, but this is not true in reality। In reality में ये true नहीं है।
because the prices per unit of these items are not same in the year 2015. Thus, the base of comparative study of prices of 2016 is different है, क्योंकि एक का प्राइस है 30 and दूसरे का प्राइस है 46. Hence, this method is not appropriate to compare the variations or in a variable. हम compare नहीं कर सकते. So the method of relative measure is used in such situations में अब हम relative measures को use करेंगे. और relative measure का दूसरा नाम है ratio. Right? Now, a ratio of price of a commodity in the year 2016 is obtained with the price in the year 2015 से मिला है. So in this method, to find the relative changes in the price of an item for the year 2016, तो हम लोग क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे. तो रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ व्हीट कितना आ जाएगा, 30 डिवाइडेड बाय 24 करेंगे तो यू विल गेट 1.25. एंड रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ राइस निकालेंगे so that is 46 divided by 40, so I will get 1.15. So it can be known from this ratios that the relative measures जो है increase हो रहा है in the prices of wheat and rice में in the year 2016 is not same, क्योंकि एक में है 1.25 and दूसरे में है 1.15. So the price of wheat in the year 2016 कितना हो गया, 1.25, and the price in the year 2015, whereas the price of rice is 1.15 times its price in the year of 2015 के comparison में. Thus, it can be said that change in price of wheat is more than the price change in rice से ज़्यादा है. So we say that the ratios of prices of wheat and rice given here indicate करता है that there is a change in price at two different time periods में change हो रहा है. So it is also called as the relative change बोलते हैं या इसको हम price relative बोलते हैं. Now generally the ratios are expressed is percentage. इनको हम percentage में express करते हैं. तो अगर मैंने इनको परसेंटेज को एक्सप्रेस किया परसेंटेज में, मतलब रेशियोज को कन्वर्ट करता हूं परसेंटेज में, सो 1.25 विल मल्टीप्लाई 100 विल गिव मी 125 परसेंटेज एंड 1.15 मल्टीप्लाई 100 किया तो इट विल गिव मी 115 परसेंटेज. तो मैंने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ 100 के कंपेयर में, तो ये 25% इंक्रीज हुआ and ये 15% increase हुआ. So this is the relative percentage measure for the changes. तो such a relative measure को हम कहते हैं index number. So जो इंक्रीमेंट था वो मेरा एब्सोल्यूट मेजर हो गया और जो मेरा परसेंटेज में कन्वर्ट हुआ that is my relative measure. The percentage ratio of the variable in the current year with respect to the price of the variable in the base year is called index number कहते हैं. इवन हमने इंडेक्स नंबर की दूसरी डेफिनेशंस भी पढ़ी हैं जिसमें हमने पढ़ा था the relative percentage change in the value of a variable associated with any item for the given current period compared to its value in a fixed base period is called an index number. तो ये भी क्या है, परसेंटेज रेशियो ऑफ द वेरिएबल इन करंट ईयर में जो है विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ वेरिएबल है जो बेस ईयर है, जिसको हम कंपेयर करते हैं, जिससे हम जिस ईयर को मुझे कंपेयर करना है, जिस ईयर से मैं कंपेयर करता हूं उसको मैं कहता हूं बेस ईयर. जैसे कि पहले हमारे पेरेंट्स बोलते थे कि जब हम पढ़ाते थे तब हमारे बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे आते थे. तो फिर एक बार मैंने पूछा कि आप अपने बच्चे को कब पढ़ाते थे, तो बोले मैं मेरे बच्चों को KG1 KG2 में पढ़ाता था. भाई डेफिनेटली ये KG1 KG2 में तो पेरेंट्स हर बच्चों को पढ़ाते हैं तो मार्क्स डेफिनेटली बहुत अच्छे आएंगे.
बट आज वो बच्चा आपका 12th में आ चुका है, तो कुछ तो वेरिएशन होगा, तो कंपेयर करा तो आपने किससे कंपेयर किया? वो वाले बेस ईयर से, जब आपके फादर आपको पढ़ाते थे या जब आपके फादर आपको पढ़ाते थे, दैट वाज अ बेस ईयर, मतलब आपने कंपेयर किया। तो जिस ईयर को आप कंपेयर करते हो उसे कहते हैं बेस ईयर। क्लियर? नाउ सो फॉर्मूला है, तो इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन द करंट ईयर डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन द बेस ईयर into 100. So that is the formula of index number. So introduction of index number क्या है अब हमारा? In order to understand the economy, हमें इकोनॉमी को समझना है। तो इकोनॉमिक एनालिसिस हमारी क्या है? नेशनल इनकम है। आज नेशनल इनकम पर ईयर हमारी चेंज होती है। एग्रीकल्चर आउटपुट कितना है हमारा, प्रोडक्शन कितना हो रहा है एवरी ईयर, इंडस्ट्रियल आउटपुट कितना है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, इन्फ्लेशन क्या है हमारे इंडिया का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सेट्रा। तो ये सब चीजें में क्या होता है, वेरिएशंस आते हैं ईयर बाय ईयर, ये इंक्रीज भी होते हैं, ये डिक्रीज भी होते हैं। सो पॉपुलर स्टैटिस्टिकल टूल इन सब को स्टडी करने के लिए क्या है हमारा, इंडेक्स नंबर है। इंडेक्स नंबर प्रिडिक्ट करता है मोर एक्यूरेटली द करंट फेज ऑफ बिजनेस साइकिल को, इसीलिए हमें इंडेक्स नंबर को पढ़ना बहुत जरूरी है। सेंसेक्स इज कॉमनली यूज एज इंडिकेटर ऑफ शेयर मार्केट डीलिंग्स के लिए। आज अगर इंडेक्स नंबर नहीं होता तो मेरा शेयर मार्केट नहीं होता। पूरा का पूरा जो शेयर मार्केट है वो इंडेक्स नंबर पे ही चल रहा है। आज इंडेक्स नंबर का इतना सारा इंपॉर्टेंस है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी। इंडेक्स नंबर इज अ स्पेशलाइज्ड एवरेज है जिसे डिजाइन किया गया है टू मेजर द चेंजेस इन वेरिएबल और अ ग्रुप और रिलेटेड वेरिएबल्स में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जोग्राफिकल लोकेशन और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज इनकम, प्रोफेशंस एक्सेट्रा। अगर मैं एक सिंपल सी चीज बोलूं कि आज हम लोग बात करते हैं जोग्राफिकल लोकेशंस का, तो आप जिस सिटी के अंदर में रहते हो, मैं उसी सिटी के बारे में बात करूं, तो एक एरिया एंड दूसरा एरिया ले लेते हैं, एरिया 1 एंड एरिया 2, एंड सेम बिल्डर है जिसने अपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी है विद सेम डिजाइन। एक को नाम दे दिया है इंद्रप्रस्थ 1 और दूसरे को नाम दे दिया इंद्रप्रस्थ 2, क्योंकि वो एरिया 1 में था इसलिए इंद्रप्रस्थ 1 हो गया, इंद्रप्रस्थ टावर 1 ले लिया, और वो एरिया 2 था इसलिए इसको नाम दे दिया इंद्रप्रस्थ टावर 2। सेम बिल्डर, सेम डिजाइन, एवरीथिंग इज सेम, बस लोकेशन दोनों का चेंज है। क्या दोनों की प्राइस वो सेम रख सकता है? नहीं रख सकता दोनों की प्राइस सेम, क्योंकि एरिया एरिया के हिसाब से प्राइस डिसाइड होता है। दैट इज अ ज्योग्राफिकल लोकेशन। सबसे बेस्ट एग्जांपल है, हम सबको पता है मुंबई में प्राइस अगर आप बीच के पास लो और एक थोड़ा इंटीरियर में लो या कोई दूसरी प्लेस पे लो, तो प्राइस का कितना सारा वेरिएशन आता है, वहां पे तो करोड़ों में चलता है। तो वही चीज है। दूसरा चीज है टाइम। अब देखो टाइम का बेस्ट एग्जांपल था कि अभी जो हमारे साथ चल रहा है इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर में, प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है। प्राइस ऑफ वेजिटेबल हाई हो गया है, कभी कम हो जाता है, कभी हाई हो जाता है, तो दैट इज अकॉर्डिंग टू द टाइम। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज इनकम, प्रोफेशंस एंड एक्सेट्रा। हमारी सैलरी कितनी होगी, नेक्स्ट ईयर मेरी सैलरी कितनी होनी चाहिए, तो ये सब डिसाइड करने के लिए मुझे इंडेक्स नंबर की हेल्प लेनी पड़ेगी। इवन बिजनेस में भी कोई भी पॉलिसी डिसीजन लेना है तो उसमें भी मुझे इंडेक्स नंबर की जरूरत है। हमारे जो भी इकोनॉमिक्स जो भी पॉलिसीज बनाते हैं उनको भी इंडेक्स नंबर की जरूरत पड़ती है। सो इंडेक्स नंबर इज अ स्पेशलाइज्ड एवरेज है डिजाइन टू मेजर द चेंजेस इन वेरिएबल और अ ग्रुप ऑफ रिलेटिव वेरिएबल्स में विद रिस्पेक्ट टू टाइम को ध्यान में रखते हुए, ज्योग्राफिकल लोकेशन को ध्यान में रखते हुए एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए। When one says that the wholesale price index is 130 for September 2019 compared to September 2018 से, तो इसका मतलब होता है that wholesale price commodity have increased by 30% during the year, क्योंकि आपका जो बेस था ईयर मंथ वो 2018 था, एंड बेस ईयर इज ऑलवेज 100 होता है। ये हमने याद रखना है कि बेस ईयर इज ऑलवेज 100 होता है, और उसमें कंपेयर कर रहा हूं तो 2019 में 130 हो गया, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, 30% इंक्रीज हुआ। मुझे ये परसेंटेज से एक याद आया, मैं अपना ही एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं। इन 6-7 स्टैंडर्ड में, मतलब 6 या 7th में स्टैंडर्ड में, हमें एक टीचर आते थे पढ़ाने के लिए, मुझे और मेरे फ्रेंड को। मेरे फ्रेंड का नाम था विकास भौरा।
एंड हम लोग साथ में ही पढ़ते थे, सेम स्कूल में जाते थे, एक साथ जाते थे, नेबर ही थे, एक ही स्कूल में थे, एक ही ट्यूशन टीचर घर पढ़ाने आता था। एंड एग्जाम्स होती थी स्कूल का, तो रिजल्ट आता था, मेरे को आए 70%, मेरे फ्रेंड को आए 80%। अब जब रिजल्ट आता था मेरी मम्मी मुझे बहुत मारती थी कि देख, एक ही स्कूल में जाते हो, बराबर है, प्लस एक ही टीचर से पढ़ते हो, तो क्यों तेरे फ्रेंड को 80% आया और तेरे को क्यों 70% है। ये मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सबके साथ ऐसा ही होता होगा। और मुझे मार पड़ती थी, वो 10% ज्यादा लेके आया उसके लिए, जब तो पढ़ाई नहीं करता ये सब बोल के। और मुझे बहुत दुख भी होता था, पर ठीक है, सबका माइंड एक जैसा नहीं होता। अभी टीचर आता है शाम को घर पे पढ़ाने के लिए और टीचर को बताए जाते हैं, तो टीचर उसमें और मिर्ची डालता है, क्या बोलता है, मैडम 10% ज्यादा नहीं आया। मम्मी बोलते थे क्यों, 70 और 80 में तो 10% ही ज्यादा है। बोले नहीं, कंपैरिजन कैसे होता है, 10% ज्यादा है, आपने किससे कंपेयर किया, विकास के मार्क्स से कंपेयर किया। तो विकास के मार्क्स और चेतन के मार्क्स में 10% का जो डिफरेंस है, तो 10 को आप डिवाइड करो 80 से, क्योंकि आप जिससे कंपेयर कर रहे हो वो नीचे आएगा। ओके, और फिर आप उसका परसेंटेज निकालिए, तो 12.5% विकास को ज्यादा आए चेतन से। तो ये जो 2.5% जो ज्यादा है ना, क्योंकि देखो प्रैक्टिकली यही है कि हम क्या बोलते हैं कि जो भी डिफरेंस है वो डिफरेंस ऊपर आएगा, डिवाइडेड बाय आप कंपेयर किससे कर रहे हो, वो उसके मार्क्स नीचे आएंगे, तो दैट कम्स टू 80 नीचे आएगा, इनटू 100। अब आपको पता चलेगा कि कितने मार्क्स ज्यादा आए, क्योंकि आप वो कर रहे हैं। तो और मार्क पड़ देगी, 2.5 मार्क, 2.5% ज्यादा थे तो और एक थपक पड़ जाते, देख ज्यादा मार्क्स है उसके, पढ़ता नहीं है, ऐसा होता था। ओके, तो इसीलिए बोला गया कि 130 एंड 100 है, तो उनका डिफरेंस कितना है, 30%। तो 30 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 करेंगे तो पता चला 30% ज्यादा आया। सो एन इंडेक्स नंबर मे बी यूनिवेरिएट इंडेक्स हो सकता है या वो कंपोजिट इंडेक्स हो सकता है। यूनिवेरिएट इंडेक्स का मतलब क्या होता है, दैट इट इज कंप्यूटेड फ्रॉम अ सिंगल वेरिएबल। तो जो सिंगल वेरिएबल से आए उसे कहते हैं यूनिवेरिएट इंडेक्स। एंड कंपोजिट इंडेक्स, इट इज कंप्यूटेड फ्रॉम ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स। तो जो ग्रुप पे से आए उसे कहते हैं कंपोजिट इंडेक्स, और जो सिर्फ सिंगल वेरिएबल से आए उसे कहते हैं यूनिवेरिएट इंडेक्स। ओके, नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द इंडेक्स नंबर। फर्स्ट था, इंडेक्स नंबर अ स्पेशलाइज्ड एवरेज है। इंडेक्स नंबर मेजर करता है नेट चेंजेस इन अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स। इंडेक्स नंबर मेजर्स करेगा इफेक्ट ऑफ चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में आपने कितना किया, राइट। नाउ आज तक की न्यूज है 10 बजे की, जहां पे हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर। यस, हमारा इंडेक्स नंबर प्रैक्टिकल लाइफ में किधर किधर यूज होता है, हम इंडेक्स नंबर तो पढ़ रहे हैं, पर किधर किधर यूज होगा इसके बारे में हम जानते हैं आगे की स्लाइड में। तो इंडेक्स नंबर होता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, दूसरा होता है इन्फ्लेशन इंडेक्स, तीसरा है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंडेक्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडेक्सेस, लिटरेचरी इंडेक्स, हेल्थ इंडेक्स, क्राइम इंडेक्स। यस, ये सब इंडेक्स नंबर होता है और ये सब को हेल्प करता है हमारा चैप्टर इंडेक्स नंबर। अब इनकी उसके ऊपर से हम लोग पॉलिसीज बनाते हैं, जो हमारी इकोनॉमिक्स पॉलिसी बनाएगा। अच्छा, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर है तो इसके लिए पॉलिसी बनानी पड़ी, तो ये कौन सी पॉलिसी को हेल्प करता है, अबाउट द डीएनएस अलाउंस पॉलिसी को ये हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट इज फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इन्फ्लेशन के इंडेक्स के ऊपर से बनाई जाएंगी। देन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंडेक्स के लिए हम लोग बात करते हैं अबाउट द एग्रीकल्चर पॉलिसी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स के लिए बनती है इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडेक्सेस के लिए बनती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसीज। लिटरेचरी इंडेक्स हो तो उसके लिए है एजुकेशन पॉलिसी। हेल्थ इंडेक्स है तो हेल्थ पॉलिसी। क्राइम इंडेक्स है तो सिक्योरिटी पॉलिसी। ऐसे बहुत सारे इंडेक्स है,
मैं अगर जहां तक मेरी नॉलेज है वहां पे अगर हम बात करेंगे देयर आर 32 टाइप्स ऑफ पॉलिसीज, तो 32 टाइप्स ऑफ पॉलिसीज के लिए आपको 32 टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स चाहिए। तो इंडेक्स नंबर आएगा तभी वो पॉलिसी आएगी। आज क्यों हम लोग बोलते हैं पुलिस स्टेशन, पुलिस थाना एंड चौकी, आप इन सब तीन के बारे में थोड़ा रिसर्च करोगे तो थाना कब यूज होगा, स्टेशन कब यूज होगा, चौकी कब यूज होगा, बोलते हैं ना ये पुलिस चौकी है, ये पुलिस थाना है और ये पुलिस स्टेशन है। ये तीन वर्ड के पीछे एक डिफरेंस है। ये तीन बीच का जो डिफरेंस है वो आप फाइंड करिएगा तो आपको पता चलेगा। मतलब कि अकॉर्डिंग टू द सम एरियाज हम इन तीनों को डिसाइड करते हैं। तो उसी तरीके से कोई भी जो पॉलिसी बनती है उन सब के लिए पहले हमें इसका इंडेक्स नंबर निकालना पड़ता है और उसके बाद ही हम उनके ऊपर में पॉलिसीज डिफाइन करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं अबाउट सम थियरीज के बारे में। बहुत हमने थोड़ा स्लाइड्स देख लिया है, अब हम पढ़ते हैं अबाउट सम थियरीज। सो मॉड्यूल नंबर 1 इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशंस पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में हमने लिखा है कि दैट यू मस्ट हैव रेड द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ न्यूज़ इन द न्यूज़पेपर में हम कभी-कभी पढ़ते हैं दैट दिस मंथ प्राइसेस ऑफ pulses हैव इंक्रीज्ड बाय 40% as compared to the prices in the last month. Definitely this year export of India have fallen down by 20% compared to the export of last year. Industrial production have increased by 2.5%. Fourth, central government has increased the DNS allowance by 5% from July 2008 to its given to its year employees. So, to understand the meaning of these new items, you have to study the concept of index number का पढ़ना पड़ेगा. So, index number क्या है? हमारे indicators हैं of changes over a specified period of time. That is first price of sales, import, export, price of commodities, industrial production, agriculture production. So they are the indicators or inflationary or deflationary हम कह सकते हैं tendencies. So they are called the economic barometers of the country बोला जाता है. They are useful है for taking the decisions and planning and actions of government and management people के लिए. तो डेफिनेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर क्या बोला गया है दैट इंडेक्स नंबर इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर डिजाइन टू शो चेंजेस इन अ वेरिएबल और अ ग्रुप और रिलेटेड वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको करना है। ज्योग्राफिकल लोकेशन हो सकता है या अदर कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज हमारी इनकम, प्रोडक्शन, प्रोफेशंस एक्सेट्रा। इंडेक्स नंबर एक सिंगल रेशियो है, यूजुअली इन परसेंटेज होगा, जो मेजर करेगा हमारा कंबाइंड दैट इज एवरेज को। चेंज ऑफ सेवरल वेरिएबल्स होते हैं उसके अंदर में बिटवीन टू डिफरेंट टाइम, प्लेसेस और सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए। अभी सिचुएशन से मुझे एक एग्जांपल याद आया, सबसे बेस्ट एग्जांपल है ओला और उबेर का। आपको कहीं जाना है और आपने क्या किया, पहले ये चेक कर लिया कि भाई क्या प्राइस होगी और क्या वो व्हीकल हमारे लिए अवेलेबल होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए आप क्या करते हो, पहले एक बार चेक कर लेते हो। ओला के अंदर में आपने चेक किया कि भाई मेरे को इस एक्स डेस्टिनेशन से वाई डेस्टिनेशन जाना है, तो वेदर उबेर अवेलेबल है और क्या उसकी प्राइस होगी। क्यों हम ये डिसाइड करते हैं, क्योंकि उसकी प्राइस हम ये डिसाइड कर लेते हैं अगर प्राइस ज्यादा हुई तो मैं शायद ऑटो पकड़ के चला जाऊँ, नहीं तो हम कार से चले जाएंगे। आपने प्राइस चेक कर लिया, इट कम्स टू नियर अबाउट सपोज 80 रुपीज। फिर आप ठीक, अब जब आप सब रेडी हो जाते हो और फिर आप वापस ओला को बुक करते हो। अब जैसे ही आप उसी डेस्टिनेशन के लिए बुक करते हो, ओला इंस्टेड ऑफ 80 शोइंग यू नाउ 100 रुपीज। आप बोलते हो ये क्या हो गया, अभी 2 मिनट तो पहले चेक किया था तो 80 रुपीज था, अभी 100 रुपीज हो गया। आप इमीडिएटली वापस उसको बंद कर देते हो, फिर सोचते हो मैं बाद में चेक करता हूँ। फिर हमने जैसे ही वापस चेक किया 5-10 मिनट बाद, नाउ इट इज शोइंग यू 130 रुपीज। तो ये लोग क्या करते हैं, इन्हें पता चल जाता है कि जो हमारा आईपी एड्रेस होता है ना फोन का या वो सिम कार्ड का जो, तो उनसे वो लोग को पता चल जाता है कि ये पर्सन को ये डेस्टिनेशन पे जाना है और ये पर्सन वापस वही चीज को सर्च कर रहे हैं क्या हो। तो वो लोग उस टाइम पे क्या करते हैं, उसके प्राइस को इंक्रीज कर देते हैं। तो दैट इज अ सिचुएशन, वो हमारी सिचुएशन के साथ खेलते हैं। बट आप एक और चीज बताता हूँ, आप सेम अब दूसरे फोन से लोकेट करो और अपने ही घर में थोड़ा सा लोकेशन चेंज कर दो, वापस बुक करोगे तो आपको 80 रुपीज दिखाएगा। सो दैट मीन्स कि हमारी वो सिचुएशन के साथ खेलते हैं, हमारे टाइम के साथ वो खेलते हैं, हमारे जहाँ पे हमें जाना है उन्हें पता है कि वो अभी डिमांड ज्यादा है। आप अगर यही चीज को चेक करोगे स्टेशन पे या आप एयरपोर्ट पे, तो जब भी कोई भी फ्लाइट लैंड करती है
उस टाइम पे वो लोग प्राइस को इंक्रीज कर देते हैं और फिर आधे घंटे के बाद या 45 मिनट्स के बाद वो प्राइस को लेस कर देते हैं। तो वो लोग भी टाइम प्लेस और सबके साथ वो गेम वो लोग भी खेलते हैं, राइट। सो इंडेक्स नंबर भी यही है, ये टू डिफरेंट टाइम्स प्लेसेस या सिचुएशन के साथ खेलता है। Thus, from the above definition, we conclude that हम क्या conclude करते हैं that index number are the economic indicators of the situations है। Index numbers are also called the specialized average होते हैं। Okay? चल, अब हम MCQ सॉल्व करते हैं। तो MCQ नंबर 1 है, इंडेक्स नंबर आर इंडिकेटर्स और इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी टेंडेंसीज। तो ये अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि इंडेक्स नंबर जो है इंडिकेटर्स और इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी टेंडेंसीज होते हैं, ये लिखा था हमने, यहाँ पे पढ़ा था, राइट। so that means we can say that this is true. Index number is a ratio which is expressed as a percentage। क्या ये हमेशा परसेंटेज में एक्सप्रेस होता है? याद है हमने एक एग्जांपल किया था 1.25 एंड 1.15, उसको मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट किया था। डेफिनेशन बोलता है इट इज अ रिलेटिव परसेंटेज चेंज। यस, सो इट इज ट्रू। इंडेक्स नंबर इज नोन एज इकोनॉमिक बैरोमीटर ऑफ द कंट्री। यस, ऊपर ही पड़ा है, ये रहा, इकोनॉमिक बैरोमीटर ऑफ द कंट्री बोलते हैं, तो दिस इज आल्सो ट्रू। Index number is a special type of average। Yes, index number जो है special type of average होते हैं। So we say that it is also true। Okay? Now moving towards the module number 2। तो module number 2 है which is based on price relative पे based है। Okay? तो relatives बोलते हैं या price relatives। Relatives are derived because absolute numbers measured in some appropriate unit में measure होते हैं or are often of little importance and meaningless in themselves। If the meaning of a relative figure remains ambiguous, it is often necessary to know the absolute as well as the relative numbers जानना हमारे लिए जरूरी है। So a price relative or simply a relative is the ratio। अब ना when I say the ratio, तो ratio का मतलब यानी क्या हो जाएगा, ये ratio है मतलब A upon B किसका, price of a certain commodity at the current year to its price। मतलब कि यहाँ पे मुझे करंट ईयर का प्राइस लिखना है, टू का मतलब हो गया ये लाइन ड्रॉ करनी है, एंड प्राइस ऑफ बेस ईयर लिखना है, इज एक्सप्रेस एज परसेंटेज। अब देखो यही चीज को मैं नीचे फॉर्मूला में एक्सप्रेस करता हूं, तो क्या लिखा था, प्राइस रिलेटिव इज इक्वल टू करंट ईयर का प्राइस टू द बेस ईयर प्राइस इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। करंट ईयर का प्राइस का नोटेशन है P1 एंड बेस ईयर का प्राइस का नोटेशन है P0 इनटू 100। सो दैट इज P1 अपॉन P0 इनटू 100 हो गया। It is generally denoted by P01 से डिनोट होता है। जनरली हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, इंडेक्स नंबर लिखते हैं ना, तो इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100 हम लोग लिखते हैं। जबकि यहाँ पे अब नाउ इंडेक्स नंबर की जगह पे आप क्या लिख रहे हो, P01 लिख रहे हो, तो दैट इज इट इज डिनोटेड बाय P01। तो P01 इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100 हो गया। तो इंडेक्स नंबर का सिंबल नोटेशन क्या हो गया, P01 हो गया। तो हम ये बोलते हैं thus price relatives are same as index number for prices है। Okay, now we solve the MCQs based on this। Price relative is equal to, तो price relative किसके इक्वल होता है, तो फॉर्मूला है price in the given year divided by price in the base year into 100, या price in base year price in the given year, base year कभी भी ऊपर आएगा नहीं तो ये कैंसिल हो गया। प्राइस इन गिवन ईयर पर इसके नीचे का पार्ट दिया नहीं है, डिनोमिनेटर पार्ट, एंड ऑप्शन डी में भी प्राइस इन बेस ईयर ऊपर दिया है, डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं, मतलब ये भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास अब ऑप्शन क्या बचा, ए, दैट इज प्राइस इन द गिवन ईयर। गिवन ईयर का मतलब होता है करंट ईयर, गिवन का मतलब क्या हो जाएगा, करंट, ओके, इनटू 100 डिवाइडेड बाय प्राइस इन बेस ईयर। तो आई से दैट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्राइस रिलेटिव्स आर द सेम एज इंडेक्स नंबर फॉर, तो प्राइस रिलेटिव्स आर सेम है एज इंडेक्स नंबर फॉर
किसके लिए सेम है, तो दैट इज फॉर प्राइस के लिए सेम है, क्योंकि हमारी फॉर्मूला में हम लोग ने क्या लिखा है, प्राइस इन दी करंट ईयर। तो प्राइस रिलेटिव हम किसके लिए फाइंड करेंगे, प्राइस के लिए फाइंड करेंगे। Price relative is the ratio of price of commodity at a given year to its price. Now try to understand the formula. तो price relative जो है that is PR is का मतलब हो गया equal to ratio price of commodity of current year to its, तो ये था to its किसका, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, प्राइस ऑफ किसका, दैट इज वी राइट डाउन द प्राइस ऑफ बेस है, इसीलिए ऑप्शन सी इज द आंसर। फोर्थ, इंडेक्स नंबर सोर्स डैश चेंजेस रेदर देन एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ चेंज। एब्सोल्यूट का मतलब था डिफरेंस, तो इंडेक्स नंबर क्या बताता है हमें, रिलेटिव परसेंटेज चेंज बताता है, मतलब रिलेटिव परसेंटेज चेंजेस रेदर देन एब्सोल्यूट। इसका लिए मुझे ऑप्शन को क्या मार्क करना पड़ेगा, सी, बोथ। रिलेटिव एंड परसेंटेज के लिए है वर्ड बोथ। नाउ द रेशियो of a price of single commodity in a given period to its price in another period is called the ratio of price of single commodity in a given period to its price in another period, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम रिलेटिव प्राइस बोलते हैं। क्योंकि आपने तो मुझे फॉर्मूला दिया, क्या दे दिया, प्राइस ऑफ सिंगल कमोडिटी इन अ गिवन पीरियड, तो दैट मीन्स आपने लिख दिया प्राइस ऑफ अ सिंगल कमोडिटी ऑफ अ गिवन पीरियड, रेशियो बोला था, प्राइस ऑफ अनदर पीरियड, तो इसको आप क्या बोलते हो, तो इसको हम रिलेटिव प्राइस बोलते हैं या प्राइस रिलेटिव बोलते हैं, तो दैट्स व्हाई इट गोस टू ऑप्शन सी। ओके, नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर। यस, मुझे पता है कि आपको सिर्फ अभी तक यही पता है कि टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइस इंडेक्स और दूसरा होता है क्वांटिटी इंडेक्स। क्या क्वांटिटी के बारे में आपको नहीं पता था? ओके, अच्छा पता भी है, ओके, अच्छा कुछ को पता है कुछ को पता नहीं है। जनरली कई लोग को यही ध्यान है कि भाई जो टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर है वो सिर्फ प्राइस से रिलेटेड होता है, जबकि ऐसा नहीं है। टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर इज ऑफ फर्स्ट प्राइस इंडेक्स, सेकेंड इज क्वांटिटी इंडेक्स एंड थर्ड होता है वैल्यू इंडेक्स। तो टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर जो है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है। ओके, तो पहला है अबाउट द प्राइस इंडेक्स। It measures the general changes in the prices of goods with reference to a particular period. Yes, तो प्राइस इंडेक्स में मेजर होता है जनरल जो भी चेंजेस होंगे इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स को ध्यान में रखते हुए होंगे कोई पर्टिकुलर पीरियड में। दे आर फर्दर सब डिवाइडेड एज होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर हम फाइंड करते हैं, रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर हम फाइंड करते हैं, एग्रीकल्चर प्राइस इंडेक्स नंबर हम फाइंड करते हैं। ओके, then we talk about the quantity index. It measures the changes in the quantity of goods. Yes, अगर मैं बात करूं तो मैं क्वांटिटी ऑफ गुड्स के बारे में बात कर रहा हूं। मैंने प्राइस इंडेक्स में चेंजेस इन प्राइस बोला था, अगर आप ध्यान देंगे तो आप प्राइस ऑफ गुड्स बोलेंगे, जबकि क्वांटिटी में हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ गुड्स, मतलब कि कितनी क्वांटिटी। So it measures the changes in the quantity of goods produced, consumed, sold or purchased, etc. with reference to a particular period. तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात करेंगे, क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे। तो they are further subdivided is as नंबर वन, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हम फाइंड करते हैं, इंडेक्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हम फाइंड करते हैं। तो जब हम लोग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बोला, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बोला, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वांटिटी, हम क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, नाउ व्हाट इज वैल्यू इंडेक्स? सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडेक्स। यस, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडेक्स का मतलब है जिसके अंदर में प्राइस इंडेक्स एंड क्वांटिटी इंडेक्स दोनों आएंगे।
So it is a combination of price and quantity changes to present और more partial comparison हो सकता है. Compares values of a commodity in a year to the value to that commodity in base year and it has a limited use और इसका जो यूज होता है वो काफी लिमिटेड होता है. तो आप क्या करते हो यहाँ पे कंपेयर करोगे वैल्यूज ऑफ अ कमोडिटी का इन अ ईयर में किसके साथ टू द वैल्यू ऑफ द कमोडिटी ऑफ बेस ईयर के साथ कंपेयर करते हैं. इट इज यूज्ड इन जनरली सेल्स में होता है, इन्वेंटरी में होता है, फॉरेन ट्रेड एक्सेट्रा में हम लोग वैल्यू इंडेक्स को यूज करते हैं. नाउ मॉड्यूल नंबर 3. सो मॉड्यूल नंबर 3 क्या बोलता है? बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड नोटेशंस एंड द टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर. यस, सो टर्मिनोलॉजी है सबसे पहले. बेस पीरियड, the period with respect to which comparisons are made. The period to which comparisons are made is called base period and it is always denoted by suffix 0 से denote होता है. दूसरी चीज, in base year is should always be a normal year होना चाहिए जिसके अंदर में कोई भी natural calamity या man made कोई भी राइट्स नहीं होने चाहिए. It has to be a normal year होना चाहिए. अगर मैं बात करूं तो 2020 दिस ईयर विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ बेस पीरियड. इसे कोई भी बेस पीरियड कंसीडर करेगा नहीं. ओके, सो पीरियड विद रिस्पेक्ट टू विच कंपैरिजंस आर मेड इज कॉल्ड बेस पीरियड. वो नॉर्मल ईयर होना चाहिए. करंट पीरियड, द पीरियड फॉर विच कंपैरिजंस आर रिक्वायर्ड टू बी मेड. यहाँ पे रिक्वायर्ड टू बी मेड है, ऊपर तक कंपैरिजंस आर मेड, यहाँ पे है आर रिक्वायर्ड टू बी मेड, इज कॉल्ड करंट पीरियड एंड इट इज डिनोटेड बाय सुफिक्स 1 से डिनोट होता है. द पीरियड मे बी अ डे हो सकता है, अ मंथ हो सकता है, अ ईयर हो सकता है. फॉर अवर स्टडी वी शैल टेक ईयर एज अ पीरियड बोला गया है. नाउ नोटेशंस क्या है? तो P0 तो ये सुफिक्स है 0, P1 तो ये 1 है सुफिक्स. ओके, इसका कहते हैं सुफिक्स. तो P0 हो that is the price of commodity in the base year. Q0 quantity of commodity consumed या purchased during the base year. P1 price of commodity in the current year. Q1 quantity of commodity consumed or purchased during the current year. W weight assigned to a commodity according to its relative importance in the group. I simple index number. It is also called price relative and thus I is given by I P1 upon P0 into 100. जिसे आप लोगों ने आगे क्या बोला था? P01 is equal to P1 upon P0 into 100 बोला था. So P01 का मतलब क्या होता है? प्राइस इंडेक्स ऑफ द करंट ईयर विद रिस्पेक्ट टू द बेस ईयर. अब आपने 3 टाइप्स के इंडेक्स पढ़े थे, प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स, वैल्यू इंडेक्स. उसी तरीके से Q01 को हम बोलते हैं क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फॉर द करंट ईयर विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर. V01 वैल्यू इंडेक्स नंबर फॉर द करंट ईयर विद रिस्पेक्ट टू द बेस ईयर. दैट इज V01 इज इक्वल टू P01 मल्टीप्लाई Q01. तो हमने पढ़ा था इट इज अ combination of index, that is price multiplied by quantity, that will give you value index number. तो ये थे हमारे standard notations and types of index number. चलिए, now we talk about the MCQ. Number 1, the period with respect to which comparisons are made is known as to which the comparisons are made. अब जिसके comparisons are made करते हो, तो ऊपर भी आपने देखो comparisons are made लिखा था, इसीलिए आंसर क्या जाएगा आपका? The period number 2 for which comparisons are required to be made. Yes, तो required to be made के लिए आपने क्या डिफाइन किया था? ये था required, तो that was current period. तो यहाँ पर भी क्या जाएगा आंसर? ऑप्शन बी, current period. The price of commodity is base year is denoted as. तो प्राइस ऑफ कमोडिटी जो बेस ईयर है उसका नोटेशन क्या होगा? तो दैट विल बी P0, क्योंकि 0 इज अ सुफिक्स फॉर द बेस ईयर होता है, इसीलिए. इंडेक्स नंबर फॉर द बेस पीरियड इज ऑलवेज टेकन एज. तो इंडेक्स नंबर
और बेस पीरियड इज ऑलवेज टेकन एज क्या होता है 100। ये मैंने आगे आपको बताया था कि इंडेक्स नंबर इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज 100। एक एग्जांपल हमने सॉल्व किया था ऑफ 130 का सितंबर 2018 एंड 2019 का, याद आया? तो मैंने उस टाइम पे बोला था कि बेस ईयर इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ 100। Dash plays a very important part in the construction of index number. Yes, तो इंडेक्स नंबर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेटिव इंपॉर्टेंस इन द ग्रुप, तो इंपॉर्टेंस पार्ट प्ले करता है। तो वो कौन था? डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब क्या था? वेट। तो इसका मतलब यहाँ पर भी आंसर मेरा क्या आएगा? वेट। द वैल्यू at the base time period serves as the standard point of comparison. Now it is true or false. The value at the base time period always serves the standard point of comparison में ही आता है. It is true. Okay? ये true है. Seventh, dash is a point of reference in comparing values, data describing individual behavior के बारे में. तो वो कौन सा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है जिसे हम कंपेयर कर सकते हैं? मतलब जैसे मैं नीचे लिखता हूँ कंपैरिजन करने के लिए, तो वो मेरा हमेशा क्या होना चाहिए? बेस पीरियड होना चाहिए। सो डैश इज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस इन कंपेयरिंग वेरियस डेटा डिस्क्राइबिंग द इंडिविजुअल बिहेवियर, उसे हम कहते हैं बेस पीरियड। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द मॉड्यूल नंबर 4। अब हम मॉड्यूल नंबर 4 पे चलते हैं। सो मॉड्यूल नंबर 4 में है बेस्ड ऑन मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द इंडेक्स नंबर, और इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अबाउट द प्राइस इंडेक्स नंबर के बारे में। यस, तो प्राइस इंडेक्स नंबर, क्योंकि जैसे प्राइस होता है, क्वांटिटी होता है, वैल्यू होता है, तो अभी हम लोग फिलहाल फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्राइस इंडेक्स नंबर। चलिए, तो प्राइस इंडेक्स नंबर जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट है इसका सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर एंड दूसरा है कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर। दिस इज द सेकंड पार्ट। तो प्राइस इंडेक्स दो पार्ट में डिवाइड हुआ, सिंपल प्राइस एंड कंपोजिट प्राइस। सिंपल प्राइस दैट इज रिलेटेड टू ओनली अ सिंगल कमोडिटी। ये सिर्फ सिंगल कमोडिटी से रिलेटेड होगा, इसलिए इसका फॉर्मूला होगा P1 अपॉन P0 इंटू 100, क्योंकि ये सिंगल कमोडिटी है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट रिलेटेड टू मोर देन वन कमोडिटी। तो जब आप एक कम्युनिटी से ज्यादा रिलेटेड होगी, मतलब एक से ज्यादा, मतलब दो तीन चार पांच कुछ भी हो सकता है, सो दैट्स व्हाई इट इज फर्दर डिवाइडेड। इसीलिए जब आप मोर देन है तब ये फर्दर डिवाइड हो गई। ये फर्दर डिवाइड हो गया दो पार्ट में, दैट इज फर्स्ट अनवेटेड एंड सेकंड इज वेटेड। नाउ हम अनवेटेड किसको बोलते हैं? तो अनवेटेड उसको बोला गया है दैट अनवेटेड इज यूज्ड व्हेन only prices of base and current periods are given। तो अनवेटेड में क्या होगा कि इट इज यूज ओनली व्हेन प्राइस ऑफ बेस एंड करंट पीरियड्स आर गिवन। मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? आप अबाउट ओनली प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं। जबकि वेटेड जो है, यहाँ पे हम ये बोलते हैं इट इज यूज्ड व्हेन इन एडिशन टू प्राइस क्वांटिटीज और वेट्स आर गिवन। सो दैट मीन्स कि आप यहाँ पे एडिशन मतलब कि प्राइस के साथ साथ आपको साथ में क्या चाहिए? क्वांटिटीज भी चाहिए, वेट्स भी चाहिए। यहाँ पे हम सिर्फ अनवेटेड में प्राइस के बारे में बात करेंगे और वेटेड में आपको प्राइस एंड क्वांटिटीज या प्राइस या वेट दोनों चाहिए, राइट? नाउ वी डिस्कस फर्स्ट अबाउट द अनवेटेड में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं अबाउट द सिंपल एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स नंबर के बारे में।
ओके, सो सिंपल एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। नाउ सिग्मा P1 एंड P0 का मतलब यानी क्या हो जाएगा कि आपको P1 एंड P0 दे दिया जाएगा और आप उसका टोटल करते हो, दैट इज टोटल ऑफ सिग्मा P1 एंड टोटल ऑफ सिग्मा P0 करोगे एंड देन डिवाइड करके इंटू 100 कर दोगे, तो दैट विल गिव यू सिंपल एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स नंबर देगा। तो ये था अनवेटेड का फर्स्ट पार्ट। अनवेटेड का सेकंड पार्ट है सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, ये ज्योमेट्रिक मीन है। ज्योमेट्रिक मीन में हम एंटी लॉग लॉग का टेबल यूज करेंगे और वो लोग हमें ये देने वाले नहीं, हमें लॉग का टेबल नहीं मिलने वाला है, हमें एंटी लॉग का टेबल नहीं मिलने वाला है। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, तो इसके सम्स आने वाले नहीं है, हमें सिर्फ इसकी फॉर्मूला ध्यान में रखनी है, जिसकी फॉर्मूला क्या होगी, इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू एंटी लॉग मल्टीप्लाई सिग्मा लॉग आई अपॉन एन। थर्ड पार्ट is simple arithmetic mean of price relative. So that is P01 is equal to sigma I upon n, इसका फॉर्मूला है। अब ये I कैसे फाइंड होगा, so I फाइंड होगा P1 upon P0 मल्टीप्लाई 100 करके। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले P1 upon P0 into 100 फाइंड करोगे, फिर उन सभी टोटल करोगे I का, एंड देन अब इसमें कैसा होगा कि ओवर हियर यू विल बी गिवन द ग्रुप्स दे दिया जाएगा, फिर आपको P1 दे दिया जाएगा, फिर आपको P0 दे दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे सबसे पहले क्या फाइंड करोगे, आई फाइंड करोगे, तो P1 अपॉन P0 इंटू 100 होगा, फिर आप इसका टोटल कर दोगे सिग्मा आई का, तो वो सिग्मा आई डिवाइडेड बाई एन, कितने कॉमोडिटी थे या कितने ग्रुप्स थे वो उससे, दैट इज विल बी योर एन, उससे आप डिवाइड करोगे। तो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ सिंपल अरिथमेटिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव। और ये कब तक, जब आपको सिर्फ प्राइस दे रखा हो तब, तो आपको जब प्राइस दे रखा होगा तब आप सिंपल अरिथमेटिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव बोला है, या आपको सिंपल एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स नंबर बोला है, क्वेश्चन में दे दिया जाएगा। मतलब आपको जो सम्स हैं वो ये दो फॉर्मूला के बेस पे ही पूछेंगे, सेकंड के सम्स आने वाले नहीं है, क्योंकि सेकंड का फॉर्मूला है एंटी लॉग एंड लॉग, इसीलिए। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द वेटेज। सो वेटेड भी अगेन आपका कितने पार्ट में डिवाइडेड हो गया, तीन पार्ट में। फर्स्ट इज वेटेड एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स नंबर, दैट इज P01 is equal to sigma WP1 upon sigma WP0 into 100। W का मतलब है यहाँ पे वेट, नाउ दैट वेट इज रिलेटेड विद योर क्वांटिटी, W जो है वो क्वांटिटी से रिलेटेड है। ओके, नाउ वेटेड aggregate index number is further divided, yes ये further divided है। तो अगर हम बात करें तो weighted aggregate price index number में आप क्या क्या फाइंड करने वाले हो, अगर मैं इसको फर्दर डिवाइड करने जाऊं तो यू आर गोइंग टू फाइंड दी लास्ट पेयर्स इंडेक्स, सेकेंड आप फाइंड करने वाले हैं पास्ट ईयर्स इंडेक्स, थर्ड है फीचर्स इंडेक्स, फोर्थ है डॉर्बिस बाउलीज इंडेक्स, फिफ्थ है मार्शल एजवर्थ इंडेक्स, सिक्स्थ है वॉल्स इंडेक्स, सेवेंथ था कैलीज इंडेक्स। तो ये टोटल 7 टाइप, आपने पहले सिर्फ 3 रीड किए, आपको एक्स्ट्रा भी और 4 रीड करने हैं। ओके, तो ये सब किस में आता है, वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर में आता है। देन इन द सेकंड
इज वेटेड ज्योमेट्रिक मीन। देखो ज्योमेट्रिक मीन है, अगेन इसमें फॉर्मूला क्या यूज हो रहा है, एंटी लॉग एंड लॉग यूज होगा, इसलिए इसके सम्स आने वाले नहीं है। इट इज ओनली फॉर योर रेफरेंस टू लर्न दी फार्मूला। अगर कल फार्मूला पूछा तो आप जवाब दे पाएंगे। यस, इसीलिए आपको यहाँ पे हमने दे दिया है फार्मूला। सो P01 इज इक्वल टू एंटी लॉग सिग्मा, ब्रैकेट में सिग्मा W log I divided by sigma W. Then third is weighted arithmetic mean price relative. P01 equals to sigma WI divided by sigma W. Right? यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं, this is again weighted arithmetic mean of price relative is divided into two parts. Weighted arithmetic mean price relative हम पढ़ेंगे about the total expenditure method and second पढ़ेंगे cost of living index number। तो ये अगेन दो पार्ट में डिवाइड होता है। ओके, चलिए अब हम सॉल्व करते हैं एमसीक्यू। द फर्स्ट एमसीक्यू इज इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू किसके होता है। तो इंडेक्स नंबर जो है इक्वल टू एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव होता है। तो इस सम ऑफ प्राइस रिलेटिव का मतलब ये नहीं क्या होगा, पॉसिबल ही नहीं है सम। हम प्रोडक्ट भी नहीं करते, हम क्या फाइंड करते हैं, एवरेज फाइंड करते हैं प्राइस रिलेटिव का। सेकंड, रेशियो और एन एवरेज ऑफ रेशियोज एक्सप्रेस एज परसेंटेज इज कॉल्ड। तो जब आप रेशियो या एवरेज को परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हो तो उसे आप क्या बोलते हैं, उसे हम इंडेक्स नंबर बोलते हैं। ओके, थर्ड, इंडेक्स नंबर्स आर ऑफ्टन कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम। तो इंडेक्स नंबर जो है ऑफ्टन कंस्ट्रक्ट किससे होता है, तो इंडेक्स नंबर जो है ऑलवेज कंस्ट्रक्ट सैंपल से होता है। सी, आज मैं कोई भी चैप्टर बोल दूं, चाहे मैं कोरिलेशन बोल दूं, मैं रिग्रेशन बोल दूं, मैं प्रोबेबिलिटी बोल दूं, कुछ भी बोल दूं, वो सब सैंपल से ही होते हैं। किससे होते हैं, सब सैंपल से होते हैं। इसीलिए आई विल से दैट इंडेक्स नंबर्स आर ऑफ्टन कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम सैंपल। इवन स्टैटिस्टिक्स का कोई भी जो होता है वो सब जो है सैंपल के बेस पे ही होते हैं। नेक्स्ट इज फोर, sum of all commodity price in the current year multiplied by 100 divided by sum of all commodity prices in the base year। तो ये किसका फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स का, दैट इज सम सिग्मा ऑफ P1 अपॉन सिग्मा P0 इनटू 100। सम का मतलब हो गया सिग्मा, commodity price in current year P1, commodity price in base year P0 into 100. This is the formula of simple aggregative price index. The simple geometric mean of price relative is, तो simple geometric price चाहिए, उसके लिए फॉर्मूला है एंटी लॉग मल्टीप्लाई सिग्मा log I divided by n. So option E is the answer. Okay, now we will be finding the module number 5. मॉड्यूल नंबर 5 में बोला है बेस्ड ऑन सिंपल एग्रीगेट मेथड टू फाइंड द प्राइस इंडेक्स नंबर। फॉर्मूला फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर क्या है, दैट सिंपल एग्रीगेट मेथड टू फाइंड द प्राइस इंडेक्स इज P01 is equal to sigma P1 upon sigma P0 into 100। सिग्मा P1 का मतलब होता है सम ऑफ करंट ईयर प्राइसेस एंड P0 का मतलब है सम ऑफ बेस ईयर प्राइसेस। ओके, सो find the price index number using a simple aggregate method। तो क्वेश्चन में आपको दे दिया गया है सिंपल एग्रीगेट मेथड है। यू हैव बीन गिवन द कमोडिटी P Q R S T एंड प्राइस इन 1995 एंड प्राइस इन 2000 दे दिया गया है। क्वेश्चन में बोला है कि 1995 को बेस ईयर कंसीडर करना है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हमारी कमोडिटी है P Q R S and T। 1995 को बेस बोला मतलब इसको मैं P0 ले लूंगा, 10, 25,
14, 20 and 30. And then price in 2000 will be my P1, 32, 40, 20, 45 and 70. अब हम क्या करते हैं इसका टोटल. यस, टोटल करेंगे इनका. So total will be 10 plus 25 plus 14 plus 20 and plus 30. So I will get the total 99. Okay. Now I will make the total of P1. So P1 का total करेंगे 32, 40, 20, 45 and 70. Yes, आपका टोटल क्या आया भाई? मेरा टोटल तो मुझे आ गया, आपका लोग का टोटल क्या आया? Yes, 207. अब हम फॉर्मूला यूज कर देते हैं, तो मतलब हम चाहें तो अगर इसको नहीं भी लिखना है तो भी हम यहाँ पे लिख सकते थे भाई टोटल इज 99 एंड टोटल इज 207. हम लिखे बिना भी कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे. और अब आपको फाइंड करना है सिंपल एग्रीगेट मेथड. ओके, सो दैट इज P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 into 100. So that is 207 divided by 99 into 100. तो कैलकुलेटर पे आप क्या करोगे? 207 डिवाइडेड बाय 99 एंड परसेंटेज का एक बटन दे रखा होगा, उसको दबा देंगे, प्रेस करेंगे तो यू विल गेट 209.0909. ओके, तो इसका मतलब यही होगा, इट इज 209.09. सो वी से दैट ऑप्शन ए इज द आंसर. तो ये था हमारा सम नंबर 1. ओके, नाउ सम नंबर 2. हमें फाइंड करना है x, मतलब ये x की वैल्यू को फाइंड करना है. प्राइस इंडेक्स बाय सिंपल एग्रीगेट मेथड इज 125. मतलब हमें P01 दे दिया है 125 और क्वेश्चन में भी दे दिया बेस ईयर प्राइस एंड करंट ईयर प्राइस भी ऐसा बोल दिया गया है. ओके, सो कमोडिटी PQRST. बेस ईयर की प्राइसेस हैं 10, 8, 12, 24, 18. करंट ईयर की प्राइस है 14, 10, X, 28 and 22. चलो टोटल. सो 10 plus 8 plus 12 plus 24 plus 18. So we'll give you 72. Now 14 plus 10 plus 28 plus 22. 74 plus X. Okay. हमारा फॉर्मूला क्या है? सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 into 100. So this is the formula of index number. P01 की वैल्यू आपको पता है, that is 125. कितनी है? 125. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 125 is equal to 74 plus x divided by 72 into 100. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, so 125 will get multiplied by 72 is equal to 7400 plus 100x. 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, so 125 multiply 72 is giving you 9000. अब 7400 लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस हो गया, is equal to 100x. So minus 7400 कर देंगे तो you will get 1600 divided by 100 is equal to x. तो x की जो वैल्यू है that is 16. तो इसीलिए अब मैं ऑप्शन में जाऊंगा और 16 को टिक लगाऊंगा. So 16 is my
answer. So I hope this concept is clear. Okay. We use price index number. हम प्राइस इंडेक्स नंबर क्यों यूज करते हैं? यस, टू मेजर एंड कंपेयर द प्राइसेस. तो हम प्राइस इंडेक्स नंबर इसलिए यूज करते हैं ताकि हम उसको मेजर कर सके, कैलकुलेट कर सके एंड उसको साथ में कंपेयर भी कर सके. इसीलिए हम प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं. मूविंग टुवर्ड्स द मॉड्यूल नंबर 6. तो मॉड्यूल नंबर 6 में लिखा है बेस्ड ऑन सिंपल एग्रीगेट मेथड टू फाइंड द क्वांटिटी इंडेक्स नंबर. अब यहाँ पे क्वांटिटी इंडेक्स नंबर के बारे में बात हो रही है, क्योंकि जैसे आप बोलते हो P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100. वही चीज क्वांटिटी के लिए होती है. तो क्वांटिटी में क्या हो जाएगा? Q01 इज इक्वल टू, इंस्टेड ऑफ P आई विल राइट डाउन Q1 upon P0 will be Q0 into 100. So that is simple aggregate method to find the quantity index number. So Q01 is equal to sigma Q1 upon sigma Q0 into 100. तो जहां जहां प्राइस है वहां पे आप Q लगा देंगे. ओके, चलिए फाइंड करते हैं. फर्स्ट वन, फाइंड द क्वांटिटी इंडेक्स नंबर यूजिंग द सिंपल एग्रीगेट मेथड. ओके, formulating Q0, Q1, first, second, third, fourth, and fifth. 170, 150, 100, 195, 205, 90, 70, 75, 150 and 95. चलिए make the total. 170 plus 150, 100, 195 and 205. So now that is giving me the total 820, 90, 70, 75, 150 and 95. So that is giving me the total 480. Okay. Now Q01 is equal to sigma Q1 upon sigma Q0 into 100. So Q1 है आपका 480 divided by 820 into 100. So 480 divided by 820 और उसका percentage. So that will give you 58.57. That is 5365 है, तो 5365. So that will be 58.57 भी बोल सकते हो या 537 भी बोल सकते हैं. हमारे ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए हम बात करेंगे. ऑप्शन E is the answer. Clear? Second, Q01 is the index for the time. Now this is a very good, क्योंकि हम लोग बोलते हैं हमेशा Q01, P01, तो ये है क्या exactly? So जब आप 01 के बारे में बात करोगे then you will be saying it is on 1 on 0 बोलोगे. क्या बोलोगे इसको आप? 1 on 0 बोलेंगे. तो Q01 is the index for the time, that is 1 on 0. Next is कि अगर अभी उल्टा हो गया, that is Q10 हो गया is the index for the time. तो तब आप क्या बोलेंगे? Then that will be considered as 0 on 1 considered होगा. बराबर, तब क्या कंसिडर होगा? 0 on 1 कंसिडर होगा. क्वांटिटी इंडेक्स नंबर डिटरमाइंस द चेंज इन. तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्या डिटरमाइन करता है? चेंज इन. हम क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्वांटिटी किसके बारे में बात करेंगे? क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे. जब हम प्राइस रिलेटिव में प्राइस के बारे में बात करते हैं कि वो प्राइस को चेंज कर रहा है,
तो उसी तरीके से कि अगर हम बोले कि क्वांटिटी इंडेक्स नंबर किसको चेंज करना मांगता, तो हम क्या बोलेंगे, क्वांटिटी को चेंज करना मांगता। सिंपल एग्रीगेट ऑफ क्वांटिटीज इज अ टाइप ऑफ, यस, तो सिंपल एग्रीगेट ऑफ क्वांटिटी किसका टाइप है, तो इट इज अ क्वांटिटी इंडाइसेस। आई होप द क्वांटिटी पार्ट इज क्लियर टू यू। मॉड्यूल 7, based on simple aggregate method to find the value index number। यस, अब हम किसके बारे में बात करेंगे, वैल्यू इंडेक्स नंबर के बारे में बात करेंगे। सिंपल, जैसे आपने बात किया था P01 Q01, अब हम किसके बारे में बात करेंगे, V01 के बारे में बात करेंगे। सी, आप लोग ने बोला P01 क्या होता है, सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100 होता है। आपने क्वांटिटी के बारे में क्या बोला, Q1 अपॉन Q0 इंटू 100 होता है। तो उसी तरीके से क्या होगा V01, और हमें पता है कि V01 क्या है, P01 मल्टीप्लाई Q01 होता है, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। तो इसका मतलब यानी क्या होगा कि सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 मल्टीप्लाई Q1 अपॉन Q0, तो दिस विल बी रिटन एज सिग्मा P1 Q1 अपॉन P0 Q0। तो ये हो गया वैल्यू इंडेक्स नंबर। तो इसीलिए वैल्यू इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला ही हमारा बना है, और लास्ट में इंटू 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने तो सिर्फ इसको मल्टीप्लाई किया है। सो वैल्यू इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। ओके, तो ये आपको क्या देगा, वैल्यू इंडेक्स नंबर देगा अकॉर्डिंग टू द सिंपल एग्रीगेट मेथड। ओके, सो ओवर हियर यू हैव बीन गिवन, कैलकुलेट करो वैल्यू इंडेक्स नंबर यूजिंग द सिंपल एग्रीगेट मेथड, एंड यू हैव बीन गिवन कमोडिटीज A B C D E, बेस दे दिया गया है, प्राइस है, क्वांटिटी है, करंट ईयर है, प्राइस क्वांटिटी दे दिया गया है। तब आपको क्या फाइंड करना है, P1 Q1 एंड P0 Q0 फाइंड करना है। ओके, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, P0, दिस विल बी Q0, P1 एंड Q1। ओके, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नेक्स्ट कॉलम ही फाइंड कर लेता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ P1 Q1, और नेक्स्ट कॉलम होगा P0 Q0। ओके, चल, तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले P1 Q1 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो दैट मीन्स 40 मल्टीप्लाई बाई 15। मेरे साथ साथ करते जाना, जैसे जैसे मैं करूँ वैसे वैसे आप करते जाना। सी, आप कैलकुलेटर की भी हेल्प ले सकते हो, पहले मैं इसमें बता देता हूँ। तो आपने किया 40 इंटू 15, तो यू विल गेट 600, 70 इंटू 20, so you got 1400, 22 multiply 60, so you will get 1320, 90 multiply 18, you will get 1620, and 100 multiply 16 is 1600। फिर आप सबको टोटल करोगे, राइट, जब आप सबको टोटल करोगे तो 600 प्लस 1400 प्लस 1320 1620 and 1600, तो यू विल गेट द टोटल 6540। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ P1 Q1 का टोटल है 640। नाउ आई गो विथ P0 Q0, 30 multiply 13 will give me 390, then is 40 multiply 15 will give me 600, next 10 multiply 12 120, 50 multiply 10 500, 20 multiply 14 will give me 280। और अब मैं इसका टोटल करूंगा, अब जब मैं इसका टोटल करता हूं तो व्हाट आई एम गेटिंग इज 390 प्लस 600 प्लस 120 500 एंड 280।
So I am getting the total 1890. So my value index number is 6540 divided by 1890. 0. So I will get, और बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, into 100, right? So you will get the answer 346.03. So we say that option A is the answer. तो ये था मेथड से, जहाँ पे आपने लिखा, किया और सब कुछ किया, कितना टाइम जाएगा। अब वही चीज आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। यस, क्या करोगे आप कैलकुलेटर से? चलिए अपना कैलकुलेटर उठा लीजिए, एंड व्हाट यू विल बी डूइंग इज, आई एम जस्ट सेइंग, आप वही स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, अपने कैलकुलेटर पे ऑन ऑफ का बटन, एमआरसी का बटन को 2-3 बार दबा दें। नाउ व्हाट यू विल बी डूइंग इज 40 मल्टीप्लाई बाय 15। आप सबसे पहले क्या कर रहे हो मैं बता देता हूँ, P1 इंटू Q1 कर रहे हो आप लोग, ओके। तो 40 मल्टीप्लाई 15 m प्लस 70 मल्टीप्लाई 20 m प्लस 60 मल्टीप्लाई 22 m प्लस 90 इंटू 18 m प्लस 100 इंटू 16 m प्लस कर दोगे, और उसके बाद आप MRC का बटन प्रेस कर देंगे और साइड में लिख दोगे कि भाई सिग्मा P1 Q1 कितना आ रहा है भाई, 6540 आ रहा है। ओके, ये साइड में एक बार लिख दिया। अब आप क्या करोगे, अब आप फिर से MRC के बटन को 2-3 बार प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि जो भी मेमोरी में है वो चला जाएगा। कर दिया आपने? चल वेरी गुड। अब हम करेंगे P0 इंटू Q0, ओके। नाउ P0 इंटू Q0 करेंगे, so that will be 30 multiply 13 m plus 40 multiply 15 m plus 10 multiply 12 m plus 50 into 10 n plus 20 into 14 m plus, और आपका जो भी आंसर आया होगा आप उसमें क्या करोगे, MRC का बटन दबा देंगे एंड यू वुड गेट दी आंसर 1890 मिला होगा आपको, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा 1890। अब आप इसके बाद क्या कर सकते हो, डिवाइड इक्वल टू कर दो, मतलब वो डिवाइड इक्वल टू कर दोगे। तो आपने जैसे ही डिवाइड और इक्वल टू किया तो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखेगा 0.00052910052। अब आप जो भी आंसर आया उसको मल्टीप्लाई कर दो 6540 से। सो मल्टीप्लाई 6540 टाइप करके इक्वल टू का बटन दबाना ना भूलें, जनहित में जारी। देन यू विल प्रेस इक्वल टू, so you will get your answer as 3.46, right? Index number is always multiplied by 100 होता है, तो आपका जो भी इक्वल टू करके आंसर आया उसके साथ आपको लास्ट में इंटू 100 करना है। तो इंटू 100 करके इक्वल टू का साइन फिर से दबाएं और तब जाके आपको आंसर मिलेगा 346.03। तो ये सारा काम हम कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं, बस एक ही बार हमने लिखा, एक ही अमाउंट को हमने लिखा और वो अमाउंट था साइड में 6540। बाकी सारा का सारा काम हम ये कैलकुलेटर पे कर सकते हैं अगर ऐसा समझी आए तो, जिसको कुछ ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, स्पीड आ जाएगी, तो ये 1 मिनट 20 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, वी मूव टू द नेक्स्ट। The purpose determines the type of index number to use. Yes, जो भी हमारा पर्पस होता है डिटरमाइन करता है टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर से। हमने आगे पढ़ा था ना इंडेक्स नंबर प्रैक्टिकल लाइफ में किधर किधर यूज होता है, तो सब क्या थे, हमारे पर्पस ही थे, इसीलिए आंसर क्या जाएगा, यस। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द मॉड्यूल नंबर 8। मॉड्यूल नंबर 8 क्या बोलता है, बेस्ड ऑन सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव यूजिंग एएम, मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू करना है।
तो अब हमें यहाँ पे सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव यूजिंग एएम फाइंड करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंस्ट्रक्ट द इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2012 टेकिंग 2001 एज बेस बाय यूजिंग अरिथमेटिक मीन। ये वन को कैंसिल कर दीजिएगा, एक ही चीज को फाइंड करनी है। ओके, अरिथमेटिक मीन से हम फाइंड करेंगे। अब अरिथमेटिक मीन, आई होप यू रिमेंबर द फॉर्मूला। क्या था फॉर्मूला? सिग्मा आई अपॉन एन। और आई कैसे फाइंड करते थे? P1 अपॉन P0 इंटू 100 से। तो हम भी यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले आई को फाइंड करते हैं। चल आई को फाइंड करेंगे सबसे पहले। एंड उसका टोटल। डन। तो क्या होगा सबसे पहले? तो ये डिसाइड करते हैं कि टेकिंग 2012 टेकिंग 2001 एज अ बेस बोला गया था। ओके, सो दैट मीन्स दिस इज माय P0 एंड दिस विल बी माय P1। सो 10 डिवाइडेड बाय 6 एंड परसेंटेज का स्विच दबा दें, तो यू विल गेट 166.67। मैं क्या करता हूँ, साथ साथ में आई लिख दिया। ओके चलो, देन 2 डिवाइडेड बाय 2 परसेंटेज, सो आई विल गेट 100। 6 डिवाइडेड बाय 4 परसेंटेज का स्विच दबा दिया, 150। 120 12 डिवाइडेड बाय 10 परसेंटेज, 120। 12 डिवाइडेड बाय 8 एंड परसेंटेज 150। अब आप सबका टोटल कर देंगे, तो 150 प्लस 120 प्लस 150 प्लस 100 166.67। so you will get the total 686.67। so P01 is 686.67। अब आपको n चाहिए। n का मतलब क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 आइटम्स डिवाइडेड बाई 5। सो आपने डिवाइड बाई 5 कर दिए, तो यू गॉट द आंसर 137.33। अब ऑप्शन में चेक कर लीजिए, 137.334, so that is near to option A, so we say that option A is the answer। अब ये तो आपने लिखा था करके, अब कैलकुलेटर पे कैसे करेंगे, है ना? चलो अब कैलकुलेटर के स्टेप्स लिख लेते हैं। अब कैलकुलेटर पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई 10 डिवाइडेड बाई 6, 10 डिवाइडेड बाई 6 किया, परसेंटेज का स्विच दबाया एंड बाद में अपने m प्लस का स्विच दबा दिया। क्लियर? तो आपने क्या किया, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 10 डिवाइडेड बाई 6 परसेंटेज का स्विच दबा के m प्लस का स्विच दबा दिया। सेम वे नाउ यू विल बी डूइंग 2 डिवाइड 2 परसेंटेज m प्लस, 2 डिवाइड 2 परसेंटेज m प्लस, 6 divide 4 percentage m plus, 6 divided by 4 percentage m plus, 12 divided by 10 percentage m plus, 12 divided by 10 percentage m plus, 12 divided by 8 percentage m plus, 12 divided by 8 percentage m plus, और बाद में आप MRC का बटन प्रेस करेंगे तो यू विल सी 686.666666 चलता जाएगा। दैट विल बी नाउ डिवाइडेड बाय 5। सो डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू कर देंगे आप, तो आपके कैलकुलेटर पे आपको 137.3333 दिख जाएगा। राइट? सो इन दैट सेम वे हम ये
सारा काम पूरा कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, तो ये लिखने की जरूरत आई नहीं पड़ेगी एग्जाम में। बस आपको ये स्ट्राइक होना चाहिए कि हम किस तरीके से कैलकुलेटर को यूज कर सकेंगे। ओके, चलिए नाउ वी डिस्कस अबाउट द मॉड्यूल नंबर 9। तो मॉड्यूल नंबर 9 is based on weighted index number part 1। weighted index number के methods to meet the weakness of the simple or unweighted method, we weight the price of each commodity by a suitable factor often taken as a quantity या वॉल्यूम ऑफ कमोडिटी ले लेते हैं जिसे हम सोल्ड करते हैं ड्यूरिंग द बेस ईयर। नाउ इन अदर वर्ड्स में अगर मैं बात करूं, इन दिस मेथड appropriate weights are assigned to various commodities ताकि वो हमें रिफ्लेक्ट कर सके रिलेटिव इंपॉर्टेंस इन द ग्रुप क्या है। सो दिस weights कैन बी प्रोडक्शन फिगर्स हो सकती हैं, कंजम्पशन फिगर्स हो सकते हैं, या वो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटिव फिगर्स हो सकती हैं। तो यहाँ पे हमें appropriate weights को असाइन करना होगा। सो फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्राइस इंडेक्स क्वांटिटी वेट्स आर यूज, तो यहाँ पे हमें क्वांटिटी वेट्स का यूज करना पड़ता है। सो इफ W इज द वेट जो अटैच है कमोडिटी को, देन द प्राइस क्या होगा। यस, तो प्राइस इंडेक्स नंबर का हमारा फॉर्मूला है P01 इज इक्वल टू सिग्मा W P1 अपॉन सिग्मा W P0 इंटू 100। अब W कैन बी P0 और W कैन बी, सॉरी W P0 नहीं बोलूंगा, Q0 बोलूंगा, क्वांटिटी है। और W कैन बी Q0 और W कैन बी Q1 हो सकता है। लास्ट पेयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर P01, तो लास्ट पेयर्स का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा P1 P Q0 अपॉन P0 Q0 इंटू 100। पास्ट पेयर्स इंडेक्स नंबर क्या है, सिग्मा P1 Q1 अपॉन P0 Q1 इंटू 100। ना मेरे हिसाब से आपको लास्ट ईयर और पास्ट ईयर की फॉर्मूला तो लर्न ही होगी, क्योंकि आप लोग ने ये 12th स्टैंडर्ड में लर्न भी किया था। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने इंडेक्स नंबर नहीं पढ़ा है अपनी लाइफ के अंदर में, तो उनको याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लास्ट ईयर्स की, और बाद में हम बात करते हैं पास्ट ईयर्स की। अभी लास्ट ईयर्स की फॉर्मूला हो या चाहे वो पास्ट ईयर्स की फॉर्मूला हो, इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा पी क्यू अपॉन सिग्मा पी क्यू इंटू 100। सिग्मा पी क्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा पी क्यू इंटू 100, ये पास्ट ईयर्स का होगा। तो हम लोग फॉर्मूला में ऐसा लिखते थे उस टाइम पे, दैट इज आई एल मतलब पास्ट ईयर्स की फॉर्मूला, आई पी फीचर की फॉर्मूला, पास्ट ईयर्स की फॉर्मूला, and then we talk about the Fisher's index number, that is IF. We used to say that. Now over here, लास्ट ईयर के फॉर्मूला में PQ अपॉन PQ, पास्ट ईयर के फॉर्मूला हो गए PQ अपॉन PQ, एंड फिशर की फॉर्मूला है IF। अभी क्या था कि ये तीनों फ्रेंड्स है ना आपकी शादी में होते हैं। यस, ये तीनों फ्रेंड्स आपकी शादी में होते हैं और आपके बहुत फ्रेंड अच्छे अच्छे फ्रेंड है, खास फ्रेंड है आपके। जब लास्ट ईयर आपकी शादी में आता है और वो सोचता है कि अपने को क्या करना पड़ेगा, चांदला करना पड़ेगा या वो कवर देना पड़ेगा। तो लास्ट ईयर की वाइफ बोलती है आपका फ्रेंड है तो आप कितने का कवर दोगे। तो वो बोलता है कि भाई मेरा अच्छा फ्रेंड है तो मैं कम से कम उसको 1000 रुपये का तो कवर दूंगा ही। तो इसीलिए उसको क्या करता है, वो 1000 रुपये का कवर देता है। तो 1000 रुपये का कवर दिया, दैट इज नोन एज व्हाट, 1000। तो इसने उसको ये 1000 का कवर दे दिया। यही चीज पास्ट ईयर की वाइफ ने देख लिया, ऐसे धीरे से टेढ़ी आंख से कितने का कवर डालना है, ऐसा टेढ़ी आंख से देख लिया। तो उसने बोला पास्ट ईयर को, देखो तुम्हारे फ्रेंड ने 1000 रुपये का कवर दिया, ऐसा वो कभी नहीं बोलेगी। तो क्या बोलेगी, आपका फ्रेंड है आप कितने का कवर दोगे। तो पास भी बोला कि मैं 1000 रुपये का कवर दे दूंगा। बोले 1000 रुपये तो ना अच्छा लगता है, 1000 रुपये तो सब कम देते हैं, हम थोड़ा कुछ ज्यादा देते हैं। बोले कितना ज्यादा, तो बोले 1101 का चांदा करते हैं, हम उनको 1101 का कवर देते हैं। ओके, बोले ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसने 1101 का कवर दे दिया। मतलब देखो मेरा फॉर्मूला भी बन गया। तो फॉर्मूला को याद रखने का तरीका क्या था, 1000 का कवर और 1101 का कवर।
अब दूसरा फिशर। अब फिशर क्या बोलता है, मतलब फिशर की बात क्या बोलती है, हमें किसी के दिखावे पे नहीं जाना है, अपनी अकल लगाओ। तो दैट मीन्स उन्होंने बोला कि ठीक है हम लोग यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन को फॉलो करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जो भी लास्ट पेयर ने पे किया और जो भी फिशर ने पे किया, मतलब पास्टर्स ने पे किया, उनको मल्टीप्लाई करके उसका रूट निकाल देते, तो वो बन जाएगा फिशर। तो इन शॉर्ट मॉरल ऑफ द स्टोरी है, सबसे पहले क्या आता है, एल पी एंड एफ आता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि सबसे पहले क्या आएगा, एल आएगा, फिर पी आएगा और फिर एफ आएगा। इसको याद रखने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बना लिया, एल पी एफ का। लवर्स पॉइंट पे पापा ने पकड़ा, लवर्स पॉइंट पे फादर ने पकड़ा, किसको, हमको। एल मतलब लास्ट ईयर, पी मतलब पास्ट ईयर एंड एफ, तो हमें याद ही रहेगा। एल पहले आएगा जिसमें 1000 का चंदा था, पी पास्ट ईयर है जिसमें 1101 का चंदा है, और फिशर ने क्या किया था, दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका रूट निकाल दिया। तो ये याद रखने के लिए कुछ एक छोटी मोटी स्टोरी बनानी पड़ती है। ओके, तो लास्ट ईयर था पी वन अपॉन, सॉरी, सिग्मा पी वन क्यू जीरो अपॉन सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो इंटू 100, डन। फिर पास्ट ईयर था सिग्मा पी वन क्यू वन अपॉन पी जीरो क्यू वन इंटू 100। अभी मार्शल एजबर्ग, तो मार्शल एजबर्ग ने क्या किया, सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो, मतलब हमने अब ये सब जो फाइंड किया, तो मार्शल एजबर्ग क्या करता है, जितने भी हमारे न्यूमरेटर्स हैं और डिनोमिनेटर्स है उसको वो ऐड करेगा। तो मार्शल एजबर्ग ने क्या किया, सम ऑफ न्यूमरेटर किया, दैट इज सिग्मा पी वन क्यू जीरो प्लस सिग्मा पी वन क्यू वन अपॉन सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो प्लस पी जीरो क्यू वन इंटू 100 कर दिया। तो ये फॉर्मूला बन गया था हमारा मार्शल एजवर्थ का। तो मार्शल एजवर्थ का ये फॉर्मूला था, तो दैट इज मार्शल एजवर्थ आई इंडेक्स नंबर, एम फॉर मार्शल एजवर्थ हो गया, तो इसलिए इनका फॉर्मूला हो गया ये। फिर आया वॉल्स इंडेक्स नंबर। तो वॉल्स ने क्या किया, दैट इज P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 एंड अंडर रूट में Q0 Q1। तो पहले आप Q0 Q1 को मल्टीप्लाई करो, उसका आप रूट निकालो, so that will be your W. So that is sigma P1 under root Q0 Q1 divided by sigma P0 under root Q0 Q1 into 100। ये था वॉल्स। डॉर्बीज बाउलीज इंडेक्स नंबर, ये बोलता था मैं तो एवरेज पे चलता हूँ, मैं एवरेज पे बिलीव करता हूँ, तो इसीलिए उसने क्या किया, जो भी लास्ट ईयर का आंसर आया प्लस पासिस का आंसर आया उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। तो डॉर्बिस बाउलिस इंडेक्स नंबर ने P01 इज इक्वल टू एल प्लस पी डिवाइड बाई 2 कर दिया। फिशर का हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि वॉट एवर द आंसर ऑफ लास्ट ईयर एंड पासिस उसका मल्टीप्लाई करके रूट निकालना। इट इज अ ज्योमेट्रिक मीन, इसको हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, ज्योमेट्रिक मीन भी बोल सकते हैं ऑफ लास्ट ईयर एंड पासिस फॉर्मूला। इट इज एन आइडल इंडेक्स नंबर भी बोला जाता है इसको। कैलीज इंडेक्स नंबर, व्हाट इज माय कैलीज इंडेक्स नंबर। तो कैली ने क्या बोला, सबसे पहले क्यू के लिए, दैट आप क्यू का एवरेज निकालो, दैट मीन्स क्यू जीरो प्लस क्यू वन डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। क्या कर दीजिए, क्यू जीरो प्लस क्यू वन डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। तो दैट मीन्स पी जीरो वन इज इक्वल टू सिग्मा पी वन क्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा पी जीरो इंटू क्यू इंटू 100 कर देंगे। सो ये था आपका कैलीज का फॉर्मूला। Now, in the formula of fixed weights are used. So, weights are the quantities of any period. They may be base period हो सकता है, current period हो सकता है, या वो average के हो सकते हैं। Now we talk about the weighted average of relative method. Using AM, P01 is equal to sigma IW upon sigma W, where I is group index होता है, price relative होता है, W का मतलब होता है weight expenditure या consumption, that is your P0 Q0। तो W का मतलब हम P0 Q0 भी बोल सकते हैं। यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन, अगर हम ज्योमेट्रिक मीन यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये तो आने वाला नहीं है, क्योंकि एंटी लॉग लॉग का टेबल हमें मिलेगा नहीं, फॉर्मूला टू बी रिमेंबर्ड है। सो P01 इज इक्वल टू एंटी लॉग ब्रैकेट सिग्मा W लॉग I अपॉन सिग्मा W, राइट। तो ये थी हमारी सारी फॉर्मूलाज अबाउट द वेटेड एग्रीगेट मेथड। सो टुडे आई विल बी क्लोजिंग माय लेक्चर ओवर हियर, ताकि आप इन फॉर्मूलाज को लर्न कर लें, ताकि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इनके सम्स भी हम सॉल्व कर पाए।
I hope formulas are clear to you. You have to remember the formulas जिनको भी मैं सेड कर रहा हूँ, वो सारी formulas आपको लर्न करनी है. ओके, ये कैसे फाइंड होगा? एंड P0 P1, W को बोलते हैं P0 Q0. तो जितने भी सेडेड किए हैं ये सारे आपको लर्न करने हैं. सो रियली ये है ना हमारा इंडेक्स नंबर, इंटरेस्टिंग टॉपिक, राइट? यस, आपने अभी तक सिर्फ 3 पढ़े थे, अब आपको थोड़े और 4 एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे. ओके, चलिए, आई होप you will learn the formulas and everything. Bye bye, Tata, take care. If you have any query, definitely you can always reach me on 7600828696. Bye bye, Tata, take care.